Okay, so Alok, congratulations for selection in MS in IIT Madras Applied Mechanics and MS IIT Kanpur Aerospace. And thanks for your time today. Yes, sir. Thank you so much. Okay, so Alok, I will be discussing with you your detailed journey of selection, and I think you are going to finally join IIT Madras MS in Applied Mechanics department, right? Yes, sir. So before I start, Alok, your brief information from your side. आप कहाँ से हैं? Which part of India? When did Yes, you sir. graduate? Which college you graduated from? Your CGPA, your GATE score. Was this your first GATE exam you written, or you have written more times? And what is your category? This basic information, Alok. Okay, sir. Sir, my name is Alok Kumar. I belong to Singrauli district of Madhya Pradesh. Sir, I completed my BTech from LNCT, Lakshmi Narayan College of Technology, Bhopal, from mechanical department in 2019. And उसी साल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था गेट का मैकेनिकल से ही, तो माय रैंक वाज नॉट गुड. इट वाज अराउंड 6000 माय रैंक and my score was 600. But I took 1 year drop, then I again applied for GATE and appeared in GATE. So next year in GATE 2020, I scored 693 GATE score, and my rank was 2661. So on that basis, I took admission in IIT ISM Dhanbad for MTech. But after staying there for 1 year, I realized that my interest is in research. And later on, I started finding about the more options to get into the research work. And I don't wanted to go directly into the PhD, so I wanted to go step by step. So इसलिए मैंने फिर MS का ऑप्शन चूज किया. इस साल मैंने फिर MS के लिए अप्लाई किया वेरियस IITs में, वेरियस डिपार्टमेंट में. तो उसके बेसिस पे मैंने दो तीन जगह इंटरव्यू दिया. तो उसके बेसिस पे मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ यहाँ IIT कानपुर एरोस्पेस में और IIT मद्रास अप्लाइड मैकेनिक्स में. और सर मेरा कैटेगरी जनरल है. ओके, सो आलोक, आपने IIT ISM धनबाद में एमटेक का 1 साल कंप्लीट कर लिया है वहां पे? हाँ सर, 1 साल कंप्लीट किया, उसके बाद छोड़ रहा हूँ. मतलब उसके बाद आप छोड़ रहे हैं वहां पे, एंड IIT मद्रास आप ज्वाइन कर लेंगे. Yes, ओके, sir. सो आलोक, अब मेरे को थोड़ा सा बताएं, आप प्लीज टेल मी अबाउट द वेरियस कॉल्स. यू मस्ट हैव अप्लाइड इन अदर MS courses also this particular season 2021. So Yes, tell sir. me from where you got the calls and what was your COAP status, and did you apply in CCMT also, that particular detail. Sir, actually, for MS admission, COAP is not required. Okay. We can directly apply on the basis of GATE score. Yes. So I did not apply in COAP. Okay. So I just filled the form of various IITs, various department for MS. So I got calls for interview from IIT Madras in 3 departments. And that is engineering design, applied mechanics, and mechanical. And from IIT Kanpur aerospace only. Okay. So these 4 calls. So you had 4 interviews, can I say that? Yes, sir. Okay. And Alok, why were you interested only in MS and not MTech? Because your score 693 is pretty good. So maybe you could have got something in COAP rounds also. And I'm very sure CCMT also. So why you did not try COAP and CCMT? Why MS only? Sir, last year on the basis of COAP, I got admission in IIT Dhanbad. So when I stayed there for 1 year for doing MTech, so I realized that MTech is more of a industrially, or you can say coursework, mainly related to coursework, whereas MS is related to research work. It's called the mini PhD or a step towards the PhD. So I was more interested towards the research. So I thought, okay, it's better to go for MS. So that's why I applied for MS, and that's why I was not interested in MTech. Because MTech has 2 years duration, and in that research work is very less, course work is very high. So you're interested for PhD work later on, right? Sir, if I will get opportunity, then I'll surely give it a chance. Okay. So I want to tell you here, Alok, that opportunity to IIT Madras will give you that for sure, because that is the best institute. Now it is up to you to avail the facilities there. Mentors are the best, and IIT Madras has best collaboration programs also. And that is the best platform to launch yourself anywhere globally, anywhere in the world. And applied mechanics is a very good department. I think you can pursue your interest in any domain, whether it is fluid, thermal, it is design or anything. So applied mechanics gives you opportunity for that also. So this is one of the best course you have got. And now it is up to you that how you utilize your 2.53 years and launch yourself for further research career in PhD. Now, Alok, I come to your healthy experience you had for interview. You had 4 interviews, IIT Madras and IIT Kanpur. So I would like you to tell us generally about the interviews first. What are the most important points somebody
wants to go for interview next year in MS courses, what is the most important thing in mind he should keep and where he should prepare so that he convert that? Because out of 4, you converted 2. Yes, sir. Yeah. So what I think, first of all, there are mainly 2 sessions on which this MS admission and PhD admission occurs in various IITs. Not all the IITs. Like for mechanical, IIT Madras and IIT Kanpur conduct twice in a year these MS interviews, one in summer and one in winter. So very first and very most important thing to prepare for interview is the project, your BTech project. My whole interview, my complete all those 4 interview, the major portion was of my project only. And in fact, in my Kanpur interview, that interview was lasted for almost around 30 minutes. And out of which 15 to 20 minutes, they just asked me about the project only. So from the previous interview experience, I just prepared that project work so well that I could answer every question very easily. But the most important thing first is project. And second, you have to identify your research field. Accordingly, you have to prepare the subject. So I identified my field of research in the field of design. So I prepared strength of material, mechanical vibration, theory of machines. I could not prepare machine design because I didn't get time. But these subjects are very important. So you have to first मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, फिर आपको उस आईआईटीज में जो प्रोफेसर किस फील्ड में काम कर रहे हैं, फिर उनका जो बैकग्राउंड है वो सब भी चेक करना, एक उससे आइडिया मिलता है कि एक्चुअल में करेंटली अभी किस चीज़ पे काम हो रहा है. तो दिस थिंग्स आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड more or less I observed that if your approach is good, like if interviewer asks you a question that you don't know, then still you are approaching that question towards the solution, and they will surely hint you. In most of my interviews, they started hinting me whenever I was stuck in somewhere. So they started hinting me. So that's a very good part. They just see your approach, how you are approaching after getting hints. सो सर मेरा अप्लाइड मैकेनिक्स में यही हुआ था. जैसे जनरली हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेशन में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ते हैं, उन्होंने मुझसे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पूछ दिया. तो बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं बीच में कहीं फंस जा रहा था, तो फिर उन्होंने हिंट किया, फिर मैं थोड़ा सा और आगे किया, फिर इन्होंने हिंट किया, तो पूरा कर दिया. तो सर वो मतलब बेसिकली वो एक अप्रोच चेक करते हैं. तो एक वो भी जरूरी है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना करके एटलीस्ट 3-4 सब्जेक्ट्स हम लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. मतलब उसके प्रीवियस इंटरव्यूज, एक्सपीरियंस, और सर स्पेशली आपके जो वीडियोस थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, वो जो मैराथन वीडियो, वो बहुत हेल्पफुल थे. तो अगर वैसा कुछ वीडियोस हैं तो वो सब भी देखना इंटरव्यूज के लिए जो स्पेसिफिक है. तो आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट. सो आपने जो बोला आलोक, उसको मैं समराइज अगर करूं तो आपने बोला कि बीटेक का प्रोजेक्ट जो था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. तो आपको चारों जगह पे ऑल द 4 इंटरव्यूज दे आस्क्ड यू बीटेक प्रोजेक्ट, एंड देन यू सेड दैट देयर आर सम सब्जेक्ट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट व्हिच यू शुड गो थ्रू. And then you said that it is not the answer or knowledge they are checking, the approach they are checking actually. So even if you don't know something, you should try, and then they will support you, and that is something which they want, because the research is all about exploring more, and even if you don't know then you are exploring. That is all about research. स्टूडेंट को लगता है कि सब क्वेश्चन आया और मेरे को आंसर आता है तो काम हो गया. इट इज नॉट दैट. क्वेश्चन आया जो आपको नहीं आता है और आपने उसको अप्रोच किया, दैट इज द मीनिंग. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली इसरो, बीआरसी, डीआरडीओ में भी यही चलता है. पब्लिक सेक्टर में थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ क्वेश्चन सेट होते हैं उनके. आपको वो क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल बेसिक क्वेश्चन आपको आता है तो आप आंसर करें, नहीं आता तो ना करें. वो कुछ ऐसा. तो आई थिंक दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. सर वर्क प्रोफाइल में भी डिफरेंस होता है. जो पीएसयू जो आप लोग को वर्क प्रोफाइल देती हैं उसमें ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेशन ज्यादा नहीं रहता है, रिक्वायरमेंट नहीं है. हाँ, मोर ऑफ इंडस्ट्री ओरिएंटेशन रहता है. लेकिन ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें अप्रोच एक बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी जो फिनोमेना है उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता, उसको कैसे आप अप्रोच कर रहे हो वो मैटर करता है. तो इसलिए दोनों का जो अप्रोच है वो डिफरेंस है. दैट्स ट्रू. अच्छा आलोक, अब मेरे को ये बताओ कि नॉर्मली ना बीटेक का प्रोजेक्ट 30% प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जाए. इट इज ओनली 30% चांस कि वो पूछा जाए. तो मेरे हिसाब से 4 जगह में आप गए थे तो आपसे बीटेक का प्रोजेक्ट वो 1 या 2 जगह पूछता, लेकिन आपसे चारों जगह पूछा. तो क्या आपने इंट्रोडक्शन में कहीं ना कहीं बीटेक प्रोजेक्ट की बात कर डाली थी या आपका बीटेक प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से किया था? व्हाट वाज द रीजन कि चारों जगह बीटेक का प्रोजेक्ट की बात आई? सर पहले तो मैंने बीटेक प्रोजेक्ट ही बहुत अच्छा किया था. मतलब वो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड था, तो वो उसको मैंने जानबूझ के अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया था. उसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी में उसको मेंशन किया था ताकि उनको थोड़ा उस पर फोकस जाए और उससे क्वेश्चन पूछें. और मैंने उसको अच्छे से प्रिपेयर भी किया था, जहाँ से मैं इंफॉर्मेशन ले सकता था, लाइक उसका करंट स्टेटस क्या है, उस फील्ड में क्या रिसर्च हो रहा है, जब मैंने किया था उस समय क्या. तो मैंने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से उसको तैयार किया था. तो मैंने उसको इंट्रोडक्शन में ही लास्ट में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था.
उनके सामने मतलब फोकस में ले आया था, फिर उनसे वो लोग क्वेश्चन पूछे थे काफी। तो आपने तो किसी प्रोजेक्ट इंटरव्यू मतलब में कम। बहुत हाँ सर। तो आपने प्रोजेक्ट मतलब बहुत अच्छे तरीके से किया था। वो एक रीजन था कि उन्होंने ज्यादा डिटेल में आपसे पूछा, राइट? हाँ यस सर। एंड आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी रहता है जो प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते हैं इंजीनियरिंग के दौरान। तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि मतलब आप किए हो या ना किए हो, लेकिन उनका इन्फॉर्मेशन पूरा होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आप उसके बारे में जो भी करंट स्टेटस है, जो भी आप किए हो काम, उसके बारे में एटलीस्ट थॉरली स्टडी कर लो, तब भी काम हो जाएगा। तो ये बोल सकते हैं लोग कि जो बीटेक का प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक रीजन था आपकी सिलेक्शन का इन दोनों जगह पे जहाँ पे आप सिलेक्ट हुए हैं। यस सर एग्जैक्टली। बिकॉज तो कानपुर में तो सर, हाँ सर, आधा इंटरव्यू ही पूरा उस पर चल रहा था। और मेरा जो प्रोजेक्ट था बेसिकली इट वाज नेचुरल फाइबर कंपोजिट, जिसमें हम लोगों ने कंपोजिट मटेरियल बनाया था एक नए तरीके का। तो एक मतलब जो मैंने फील्ड के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मैं इंटरेस्टेड था, तो यही फील्ड था। तो इसलिए वो लोग और क्वेश्चन पूछ रहे थे, और उस फील्ड में वहाँ पे काम हो भी रहा है, मद्रास में भी कानपुर में भी। दैट्स वाई दे थॉट ओके इट्स बेटर टू आस्क क्वेश्चन। तो आलोक का क्या ये पॉसिबल है कि आप हमें प्रेजेंटेशन कभी बाद में जब आप अवेलेबल हैं तो आप मेरे को एक प्रेजेंटेशन सी उस प्रोजेक्ट की बताएं, और हम बच्चों को बता सके कि ये प्रोजेक्ट हो सकता है और ये क्वेश्चन पूछे गए थे कानपुर में और मद्रास में, और ये प्रोजेक्ट की बेस पे सिलेक्शन हुआ है, सो दैट बच्चों को एक आइडिया लगे कि साहब बीटेक का प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, और अगर ये बीटेक प्रोजेक्ट है तो उसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं एक करेक्ट पूरी सर। सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अभी योरपीडिया के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लेकुना है, मैं आपको बताऊं इंजीनियरिंग एजुकेशन में एज ऑफ नाउ, कि बच्चा ना बीटेक का प्रोजेक्ट ढंग से करता नहीं है। और क्यों ढंग से नहीं करता कि उसको नंबर वन ये पता ही नहीं कि करना कैसे है, नंबर टू उसको ये बेनिफिट उसका नजर नहीं आता कि साहब अगर मैं प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करूं तो मेरे को बेनिफिट क्या होगा। सो आप जब प्रेजेंटेशन दें तो शायद कुछ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जो कंपोजिट में काम करना चाहते हैं, दे विल गेट एन आइडिया कि ओके दिस इज द वे प्रोजेक्ट इज टू बी डन, एंड दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये दो चीज मैं वहां पे कवर करना चाहूंगा आपके साथ प्रोजेक्ट का जब इंटरेक्शन करें। तो इज दैट बिल्कुल ओके विद सर। यू? मैं, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ग्रेट, जरूर देना चाहूँगा। अब मैं प्रिपेयर ग्रेट, कर ग्रेट। लूँगा तो सर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ग्रेट। अब आलोक हम आते हैं तीसरे पार्ट पे अपने इंटरेक्शन के, दैट इज कि आपने एमएस का भी ज्वाइन कर लिया, बहुत यस सर। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे मिलेंगी। सो अब दिमाग में क्या है, व्हाट इज देयर इन योर माइंड, एंड आई एम श्योर आपने आईआईटी मद्रास अप्लाइड मैकेनिक्स ज्वाइन किया है तो आपने किसी ना किसी से बात किया होगा कि साहब डिपार्टमेंट कैसा है, क्या इसमें चलता है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो प्लीज शेयर अस विद अस कि ये डिपार्टमेंट कैसा है और इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे। सर एग्जैक्टली मतलब वो बहुत ही एक कंफ्यूजिंग स्टेट था, जब मैं मतलब दोनों ही अपने अपने तरीकों में दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, आईआईटी कानपुर एरोस्पेस और आईआईटी मद्रास अप्लाइड मैकेनिक्स। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो मैंने लिंक्डइन से सर्च करना स्टार्ट किया सीनियर्स के बारे में, जो वहाँ से पास आउट हो चुके हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया। करीब काफ़ी सीनियर से मैंने बात किया। तो जो मेरा मतलब जो पैरामीटर था जिसके बेसिस पे मुझे करियर आगे प्रोसीड करना है, तो उन पैरामीटर्स में मैंने सारा इन्फॉर्मेशन लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मद्रास ज़्यादा बेटर उन टर्म्स में। राइट नाउ मैं अगर फ्यूचर के हिसाब से बात करूँ कि मैं फ्यूचर में किस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो राइट नाउ आई एम स्टिल कंफ्यूज दैट whether to go in research or in the job. But I think as soon as I start getting into the work, into the MS, then I will get more clarity of the idea. जब मैं प्रोफेसर से इंटरेक्ट करूंगा, जब वहाँ का यस। लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, तब मुझे आई थिंक ज़्यादा क्लियर आइडिया मिलेगा। सो आई डोंट अभी थिंक तो यू हैव फाइनलाइज्ड द प्रोफेसर एज ऑफ नाउ, राइट? हाँ यस सर। सर कानपुर में तो प्रोफेसर फाइनलाइज था, क्योंकि उन्होंने ही मुझे डायरेक्टली कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि आपको इस प्रोजेक्ट में मैं काम करने के लिए देना चाहता हूँ। वो मुझे डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट में रख रहे थे जो कि एक डीआरडीओ का कोई प्रोजेक्ट था। ओके। बट ये जो मद्रास में ऐसा सिस्टम है, पहले आप एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद फिर आपको एक फॉर्म भरना रहता है। उसमें आप प्रायोरिटी अपना प्रोफेसर का देना मतलब देना होता है, जब जो आपको गाइड एज अ गाइड चाहिए। ओके। तो अभी मद्रास में मेरा फाइनलाइज नहीं है। ओके। सो आपका आलोक मेरे को ये बताओ कि जैसे अभी आपने एडमिशन लिया है तो क्या आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स भी था, जैसे मैटलैब या पाइथन या सीएफटी, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर स्किल्स आपको पता था, या अब आप जाके इस चीज को सारे को लर्न करेंगे? नहीं सर, अभी तक तो मुझे किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई स्किल मतलब नहीं है, ना पाइथन, जावा, ना डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, किसी का नहीं। एंड आई थिंक ये इंटरव्यू में मैटर भी नहीं करता, ओके। क्योंकि आप जिस फील्ड में स्ट्रांग हो, अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो, उसको अच्छे तरीके से आप टैकल कर पा रहे हो, तो ये सब चीज़ मैटर नहीं करता, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होगे तो आके सीख जाओगे। और ओके। मैं भी सीखूंगा अभी वहाँ पे जा करके। बट वो लोग चेक करते हैं कि आप जो चीज़ पढ़े हो उसमें आप कितना स्ट्रांग हो। तो इसलिए मुझे अब तक नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आई डोंट थिंक ये मैटर करता है। अच्छा, अब मैं आईआईटी मद्रास ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स में ज्वाइन करने वाले हैं लोग, तो आप ब्रीफली हमें कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हैं वो आप हाँ हमें शेयर करें कि आईआईटी कानपुर एरोस्पेस में क्या पूछे गए थे, आईआईटी मद्रास में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ब्रीफली
क्वेश्चंस ओनली। ठीक है सर। सर कानपुर में जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, पहले तो मैंने बताया कि 15-20 मिनट तो मेरा प्रोजेक्ट के बारे में था, प्रोजेक्ट तो के ऊपर प्रोजेक्ट चला, स्पेसिफिक, तो वो हम कंपोजिट से रिलेटेड। जब आप प्रोजेक्ट हाँ, डिस्कस करेंगे तो वो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। करेक्ट सर, करेक्ट। उसके अलावा मुझे जो सोम से एक क्वेश्चन पूछा था कि जो कैंटिलीवर बीम होता है उसमें अगर फ्री एंड पे अगर पॉइंट लोड लगाते हैं तो उसमें शेयर स्ट्रेस कैसे आता है, और शेयर स्ट्रेस की वजह से डिफॉर्मे मतलब जो डिफ्लेक्शन होता है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन होता है कि नहीं होता है। फिर उसमें और कौन कौन से तरीके के स्ट्रेसेस आते हैं। फिर डस्ट शेयर स्ट्रेस है नहीं, ठीक है। हाउ विल यू डिज़ाइन, हाँ फिर नॉर्मल बीम का हम लोग डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, कौन से हम लोग अगर बीम इस मटेरियल का है तो कौन से थ्योरी ऑफ फेलियर से डिज़ाइन करेंगे, अगर दूसरे मटेरियल का है तो कौन से थ्योरी ऑफ फेलियर से डिज़ाइन करेंगे। फिर हाँ, स्ट्रेस और कंपोजिट से मेरा रिलेटेड जो प्रोजेक्ट था वो था, तो उससे रिलेटेड मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूछा था कंपोजिट का कैसा होता है, फिर माइल्ड स्टील का कैसा होता है, सारा को एक एक ग्राफ में बना करके दिखाने का पूछा था। तो ये सब होते होते करीब कंप्लीट इंटरव्यू खत्म हो गया था। फिर अब IIT मद्रास में अप्लाइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड क्यों कहते हैं, मतलब फिर उसके बाद हम लोग जो उसमें सपोर्ट्स देते हैं वो हिंज ही क्यों देते हैं, मतलब एक तरफ हिंज देते हैं एक तरफ रोलर देते हैं, ऐसा ही क्यों देते हैं, दोनों तरफ हिंज या फिर दोनों तरफ रोलर क्यों नहीं देते हैं। फिर उन्होंने जैसा मैंने बताया वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग जनरली पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पूछ दिया था। फिर वाइब्रेशन से ही क्वेश्चन पूछा था एक, कि हम लोग जनरली विस्कस डैम्पिंग का क्वेश्चन मतलब थ्योरी पढ़ते हैं कि विस्कस डैम्पिंग में कैसे पूरा एनालिसिस होता है, वो कोफिशिएंट आता है। लेकिन अगर विस्कस डैम्पिंग नहीं है, कूलम्ब डैम्पिंग है, ड्राई फ्रिक्शन है, तब उसका एनालिसिस कैसे होगा, तो उसका एनालिसिस काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो वहाँ पे मैं कंप्लीटली आंसर नहीं कर पाया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी हिंट किया था मुझे। तो एक वो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। फिर पूछा था प्लेन स्ट्रेस क्या होता है, प्लेन स्ट्रेन क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म जो टेंसर का होता है स्ट्रेस का, वो रिप्रेजेंट वो लिखने के लिए बताया था। फिर मैथ्स, सर मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मुझे 2 इंटरव्यू में जिसमें मेरा हुआ है उसमें तो मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे थे उन्होंने, बट बाकी सारे इंटरव्यू में मैथ्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, और मेनली रिलेटेड टू ग्राफ्स, कि साइन एक्स का, मॉड ऑफ साइन एक्स का, साइन मॉड एक्स का, मॉड ऑफ साइन मॉड एक्स का, तो ये सब। तो इसमें मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, ये जो सिग्नम फंक्शन होता है y इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसका कैसे ग्राफ बनेगा। तो सर ये सर यही सब क्वेश्चन थे मेनली। ओके, सो आप लार्जली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए लोग, राइट? हाँ सर, मेनली मतलब मैं अगर जो नहीं भी आ रहा था एटलीस्ट अटेम्प्ट कर रहा था, तो मतलब थोड़ा हिंट मिल रहा था तो फिर हो जा रहा था। चलो आलोक, आई थिंक वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल इंटरेक्शन। और अब आप IIT मद्रास MS ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम आपका ये प्रोफाइल सेव करेंगे IIT मद्रास का MS में अप्लाइड मैकेनिक्स। और स्टूडेंट्स को जब फ्यूचर में गाइडलाइंस चाहिए होगा तो हम आपके थ्रू उनको गाइड करवाएंगे, हम उनका कॉन्टैक्ट देंगे, सो दैट मैं विद इन 6 मंथ्स दोबारा इंटरेक्शन करना चाहूंगा आपके साथ, जिसमें मेरे को ये पता करना है कि फिर अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या चल रहा है और क्या अपॉर्चुनिटीज और हैं। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि इंडिया के अंदर रिसर्च एक बहुत बड़ा जो डोमेन है जो खाली पड़ा है अभी। बच्चे बहुत कैपेबल हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज पता नहीं है, सिग्निफिकेंस पता नहीं है, क्या बेनिफिट है वो पता नहीं है, इसलिए हम लोग रिस्ट्रिक्ट रहते हैं कुछ ही जॉब्स के लिए, और हम लोग वो ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करते जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज हैं, जो ग्लोबल करियर हमें दिलवा सकता है, और उससे स्टूडेंट्स को भी करियर में बेनिफिट रहेगा और कंट्री को भी बेनिफिट रहेगा। तो उसके लिए आप लोग जैसे अभी आगे जा रहे हैं रिसर्च फील्ड्स के अंदर, तो आपका जो नॉलेज रहेगा लोग, दैट विल वेरी हेल्पफुल टू गाइड द स्टूडेंट्स फर्दर। यस सर, So श्योर। thanks a lot Alok for your time. और सर मैं भी वेरी वेरी थैंकफुल हूँ योरपीडिया के लिए, क्योंकि आपके बहुत सारे वीडियोस, सकलानी सर के बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा था, उससे मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला था। आपका जो मैराथन वीडियोस है, और योरपीडिया टीम जो यूट्यूब में जो वीडियोस लोग अपलोड करते हैं मॉक इंटरव्यूज के, या फिर जिनका सिलेक्शन हुआ पिछले साल या फिर इस साल, वो सभी मैंने बहुत देखा, और वो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो बहुत काम आता है। तो सर वो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि वो जरूर देखें, और जहाँ जितना हो सके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का ज़्यादा कोशिश करें, जो कि योरपीडिया ऑलवेज देती है। तो सर आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू एंड सकलानी सर एंड होल योरपीडिया टीम फॉर प्रॉपर गाइडेंस एंड फॉर एवरीथिंग। सर थैंक यू सो मच। Thanks a lot Alok. Thank you. थैंक यू सर।